Today we will discuss respiratory system of pigeon, and this consists of two portions, respiratory tract and respiratory organs. So in this video, first of all we will discuss respiratory tract. The respiratory tract begins with external nares, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, that is present on the upper beak posterior side just in front of the cirri. Then these external nares are one pair, and these are oblique slit-like structures, and they will lead to olfactory sacs, which are olfactory capsules which are enclosed inside the olfactory capsules of the skull. Then these olfactory sacs, they will open behind by a pair of slit-like internal nares. Internal nares से ये जो olfactory sacs हैं, that will open into the posterior portion of the pharynx. Pharynx के posterior portion में open होंगे जाके, मतलब then further this figure has shown the next portion, मतलब external nares, olfactory sac and internal nares. These are not shown here, and this structure starts from the glottis. So from the posterior portion of the pharynx there is an aperture at the floor of the pharynx. Pharynx के floor पर एक aperture है, that is termed as glottis, which is bounded by two lips, upper and lower lips. दो timid lips होते हैं जो इसको bound करेंगे, इसके बीच में एक opening होती है which is termed as glottis. Now this structure which is present, this glottis will lead into another structure that is termed as larynx. Larynx जो अभी तक हमने जो भी organism पढ़े हैं उनके अंदर larynx is the sound box, but in case of the pigeon this doesn't function as sound box. ये sound producing में कोई help नहीं करता, but this larynx has supporting structures arytenoids and cricoids, जैसे कि हमने पहले टाइप स्टडी में किया है कि दो arytenoids होंगे एंड सेमिलुनार शेप के और एक क्रिकॉइड होगा जो कि इसको सपोर्ट करेगा लैरिंग्स को, लेकिन इसका फर्दर कोई फंक्शन नहीं है साउंड प्रोडक्शन में. दैट्स वाई दिस इज़ वेरी मच लेस डेवलप्ड इन द केस ऑफ बर्ड्स. नाउ दिस लैरिंग्स इट विल लीड इनटू ट्रैकिया विच इज़ एन elongated pipe like structure. Trachea is the windpipe which is present just on the ventral side of the esophagus. Esophagus के ventral side पर ये present होती है, and after running to some distance in the thorax it will be pushed towards the left side because of the crop. Crop की वजह से ये जो है left side में displace हो जाती है, बिल्कुल center में नहीं रहेगी, कुछ portion तक center में और उसके बाद ये displace हो जाएगी left side में. Now this trachea it is all over, it is encircled by bony rings. ये जो आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ये structures, these are bony rings which are for the support of the trachea so that they can prevent it from collapsing during the expiration. जब एयर यहाँ से बाहर जाएगी तो ये कोलैप्स ना कर जाए, तो इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए बोनी रिंग्स होती हैं, इस तरीके से रिंग्स होती हैं जो इसको चारों तरफ से इंसर्कल करती हैं बहुत सारी. सो दीज आर बोनी रिंग्स. नाउ एट द पोस्टीरियर पोर्शन दिस ट्रैकिया इट विल बाइफर्केट इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई. अब ये जो आपको बाइफर्केशन के बाद दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई एंड दीज आर ऑल्सो कवर्ड बाई रिंग्स, सपोर्टिंग रिंग्स, बट दीज रिंग्स आर कार्टिलेजिनियस. ऊपर वाली जो थी ट्रैकिया के ऊपर जितनी भी थी वो बोनी रिंग्स होती हैं और कंप्लीट होती हैं, कंप्लीट सर्कल होगा. जो ये प्राइमरी ब्रोंकस की जो रिंग्स होंगी दैट विल बी कार्टिलेजिनियस एंड दे विल बी इनकम्प्लीट मीजियली, यानी कि मिडिल पोर्शन में ये इनकम्प्लीट होंगी, ज्वाइन नहीं करेंगी और ये कार्टिलेज से बनी होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट. जो फर्स्ट रिंग होगी वो बोनी रिंग होगी और कंप्लीट होगी, उसके बाद वाली सारी जो हैं वो कार्टिलेज रिंग होंगी. So that are primary bronchi. Now you can observe there is a swelling just before the bifurcation. There is a swelling. Now this swelled structure is termed as syrinx. This swelled structure is termed as syrinx. Syrinx is the sound box of the aves. This is the unique structure which is present in the class aves only. सिर्फ aves की क्लास में ये syrinx present होता है जो कि sound produce करेगा, बाकी किसी क्लास में ऐसा कोई structure present नहीं होता. Now this syrinx this function as vocal organ and last 3 or 4 rings of the trachea. Trachea की last 3 से 4 bony rings 1, 2, 3 and 4 and first ring of the primary bronchi जो कि bony ring है that will take part in the formation of syrinx. मतलब लास्ट की 3 से 4 रिंग किसकी, ट्रैकिया की, और पहली रिंग जो है प्राइमरी ब्रोंकाई की, ये मिलकर सेरिंग्स बनाती है. यू कैन सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. अगर हम इसका वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे, जैसे सपोज ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर से काटेंगे बीच में से ऐसे लंबा, जैसे आप किसी शुगर केन के 2 पार्ट कर सकते हो ऊपर से,
ठीक है। तो उसके बाद इसको ओपन करके हाफ जो पोर्शन ओपन होगा दैट यू कैन सी हेयर. So that is a vertical section in the portion of the syrinx. Syrinx मतलब sound box. तो you can see these purple rings. These are syringeal rings. मतलब जहाँ तक syrinx होगा ये वो वाली rings हैं. तो you can see कि पहली 3-4 rings जो है 1, 2, 3 and 4 of the trachea, पहली trachea की, उसके बाद bifurcation के बाद वाली एक ring, that is primary bronchi ring. They will form the syrinx. तो ये वाला जो पोर्शन है बीच में दैट इज टर्म्ड एज syrinx और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. इससे ऊपर वाला जो है, जो ग्रीन वाली रिंग्स आपको नजर आ रही है, दीज आर ट्रैकियल रिंग्स. नीचे जो बाइफर्केशन के बाद हैं ऑरेंज रिंग्स, दीज आर ब्रोंकियल रिंग्स, प्राइमरी ब्रोंकाई रिंग्स, एंड दीज आर कार्टिलेजिनियस. और ये यहाँ से ऊपर वाली सारी जो है वो बोनी रिंग्स हैं. ओके. सो फर्दर दीज मीडियल वॉल जहाँ से बाइफर्केशन होती है, अब ये अपर वाल जो है ट्रैकिया की एज वेल एज सीरिंग्स की, दैट इज लाइंड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज शोन हेयर इन ब्लू कलर. ये जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन एंड दैट इज हैविंग थिकनिंग एट द साइट ऑफ सीरिंग्स. सीरिंग्स के वाले रीजन पर यहाँ पर एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है. यू कैन सी हेयर दिस इज कुशन लाइक थिकनिंग एंड दिस मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ सीरिंग्स की ये सीरिंग्स है यहाँ पर. उसके बाद जो मिडिल मेम्ब्रेन है दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन एंड दिस कैविटी ऑफ द सीरिंग्स इज टर्म्ड एज टिम्पैनम. जो कैविटी है इसको क्या बोलेंगे? टिम्पैनम. और ये जो मिडिल मेम्ब्रेन है जो कि ब्रोंकाई को सेपरेट करती है, प्राइमरी ब्रोंकाई को, दैट इज टर्म्ड एज internal tympaniform membrane. Now this membrane is having a fold-like structure which will hang freely in the tympanic cavity, tympanum, which is termed as membrana semilunaris. So this is membrana semilunaris and it is supported by a cartilage which is termed as pacillus. Now the sound is produced because of the vibration of this membrane. जब ये membrane vibrate करेगी तब sound produce होती है. And now the pitch and the quality of the sound produced, it will depend upon the tension of this मेम्ब्रेन. इसकी टेंशन जो है वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, उसके बेसिस पर जो साउंड है उसकी पिच डिसाइड होगी. और इसकी जो टेंशन है दैट इज़ इन टर्न कंट्रोल्ड बाय एक्शन ऑफ 2 सेट्स ऑफ पेयर्ड मसल. 2 मसल्स होती हैं पेयर में. वन इज़ इंट्रिंसिक सिरिंजियल मसल्स. यू कैन सी ये जो मसल्स हैं जो कि ट्रैकिया के साइड में प्रेजेंट होती है और सीरिंग्स में जाके इंसर्ट होती हैं. एक तो ये मसल इसकी टेंशन को कंट्रोल करेंगी और दूसरी होती हैं स्टर्नोट्रैकियल मसल्स जो कि स्टर्नम से अराइज होती हैं. स्टर्नम जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है. यू कैन इमेजिन ये बीच में एक स्ट्रक्चर होगा और यहाँ से ऐसे रिब्स जाती हैं जो ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है बीच में स्टर्नम. तो स्टर्नम से लेके ट्रैकिया तक, इस स्टर्नम को, ये बोनी स्ट्रक्चर है, इससे ट्रैकिया तक जाती हैं एंड दीज आर टर्म्ड एज स्टर्नोट्रैकियल मसल्स. You can see here intrinsic syringeal muscles and sternoctracheal muscle. So this was all about respiratory tract. Next we will talk about respiratory organs.